be your scene 1 is there. Scene 1 में मैंने आपको बताया Celano and Salarino were discussing about the vessel's loss यानी shipwreck of Antonio, और फिर वो उसके बारे में बात कर रहे होते, discussing about the losses of Antonio are discussing, and they were playing God that he maybe उसका सारा जो भी loss है, may God save him from all the losses, maybe it's the end of the loss. And then enters Shylock, and the moment talk about Jessica elopes. So Celano and Salarino, both of them agreed with their elopement, and then they discuss about the differentiate the character of this Jessica and his father Shylock. So then enters Tubal, and he comes with the news about Jessica that he couldn't find, and then he gave that for this Jessica is spending money for a monkey. She has spent 80 ducats in a day for a monkey, and then all these discussion went on. Then Shylock gave a skewed revenge with Antonio, that once Antonio has told him a dog, and Antonio always used to not used to make him feel him guilty of being Jewish. तो वो बताता है कि अगर Jewish एक इंसान है तो Christian भी है, अगर Christian को जिस चीज से दर्द होता है उसे Jewish का, and then there is a comparison between, और ये सारी चीजें वो क्यों कहता है, because he want to justify his revenge with Shylock, with Antonio. Shylock has spoken all these words in discriminating both of the religion, so that he was justifying his revenge and anger for Antonio, but actually उसका revenge और उसका जो against था वो Antonio को, वो इस वजह से था because Antonio was a liberal person, was a kind-hearted person. He used to lend money to people in less with less interest. वहीं पे Shylock used to take heavy interest, so people mostly go for the business transaction to Antonio. So Antonio was flourishing more than Shylock, and Shylock was basically a greedy man. He doesn't care about the humanity, normal or values or human respect. कुछ उसे नहीं समझा, तो उसे सिर्फ पैसा दिखता था. So this is all discussion was going on between Celano and Salarino about Antonio's shipwreck. Then enters Shylock, talks about Jessica elopement, and then Celano and Salarino give just a difference between the father and the daughter. Comes up Tubal also just give the authentication of the news that Antonio has a bankrupt. Then in the scene 1 वहाँ पे Shylock अपने revenge और अपने anger को justified mode में लाकर आता है, क्योंकि वो कहता है कि उसने मुझे एक बार dog कहा था, and then he used to always give people money, और ये बहुत ज़्यादा वो भलाई का काम करता था, and now he's a bankrupt, उसका चेहरा नहीं है रियल. Maybe question can be asked that which is the place where the people come and gather for a business transaction. So the right answer, maybe many options will be given, the right answer will be Rialto. So these type of questions might come. Now coming to Act 3 Scene 2, I told you this is the important scene or major event इसी scene में हुआ था, जिसमें कि Bassanio went to war Portia, and then Portia wanted Bassanio to stay for a day and a week, so that Bassanio can give a thought, and then he could go for choosing the right casket. But Bassanio did not want to wait for a moment. Also, he wanted to, as soon as he wanted to go for the choice of the casket, वहाँ पे वो अपने true love for Portia. I'm not saying that he did not have a true love for Portia, but somewhere there was a selfish love for Portia. जब वो Portia से मिलता है, उससे बात करता है, उसके बारे में जानता है, then he could make it out that love is not actually a selfish love, it's a true love for Portia. Then Portia, when he was going for a choose for a casket, so Portia imagined herself in a different imaginary figure. उससे पहले जब वो casket choose करते थे, तो Portia आपको एक swan, जो Elizabethan time के swans होते हैं, she imagined herself with that swan, that I am feeling that swan who about to die, and जब वो मरते हैं तो उसकी जो swan की जो body होती है वो उसी पानी में, उसी लेक में बड़े हो जाती है. तो she imagined herself as swan, that कि मैं तो अपने आप को swan की मेरी लाइफ है, मतलब I am feeling swan जो अपने लाइफ खत्म होने से पहले she used to sing song and buried his body. Secondly, she gave
की बेटी थी, और दैट गर्ल वाज बीन ऑफर्ड फॉर सिस्टर। तो वहां पे उसने एक डैंडेरियन वाइफ का एग्जांपल दिया। वो डैंडेरियन वाइफ कौन है? जो उसके मैंशन में नरीसा और लोग बाकी लोग जो खड़े थे, जो कि वो जानते थे कि दैट पर्शिया वाज इन रियल लव विद बेसानियो। अगर बेसानियो ने गलत कास्ट यूज किया तो मे बी पर्शिया will be very will be broken, will be totally will be broken। ये सब चाहते थे कि choose the right casket, so she imagined herself as Hizen, और Hizen imagine करती है and imagine Bassanio is Heracles। Now Heracles here come to rescue Hizen to save from the sea monster, and now she then herself as Hizen and as Bassanio wanted to Portia। Heracles did not was not in love with that girl, बट उसको बचाने को जो रिवॉर्ड मिलता, उस रिवॉर्ड के लिए हेरक्लिस ने अपनी लाइफ एंडेंजर की थी फॉर द सी मॉन्स्टर। तो ये एक एग्जांपल उसने दिया था कि ठीक है, तो यू गो एज ए हेरक्लिस एंड जस्ट सेव माय लाइफ, माय एवरीथिंग इज अप टू यू। Manaswin, just give me a minute, let me finish it off, then I'll ask song। There was which is being said in several books that it was a kind of hint, but it was not a hint there in the song। Then अब Bassanio when he was near to the casket seen that three different casket which was gold, silver and lead casket। तो जब वो gold casket के पास जाता है तो उसके पास वो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सोचता है गोल्डन casket को लेकर। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है ऑन पेज नंबर 90 लाइन नंबर 75 से लेकर लाइन नंबर 100 तक। ये पूरा पॉइंट जो है यहाँ पे बेसानियो ने सिर्फ गोल्डन कास्केट के ऊपर डेडिकेट किया है। उसने गोल्डन कास्केट के बारे में, उससे गोल्डन कास्केट क्यों नहीं चूज किया था, वो सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल वो कहता है, जब वो गोल्डन कास्केट के पास जाता है, he imagines that external show has no real value, people always misled by like for example लोगों को हमेशा धोखा होता व्यू को देखकर। an example in hearts and hand, what happened with this hearts and hand में क्या हुआ था, जब उस लेडी ने को धोखा हुआ था कि कौन एक्चुअल में क्रिमिनल है और कौन एक्चुअल में रियल हीरो है। तो सिमिलरली लोग हमेशा ब्यूटी को देखकर फिसल जाते हैं। एंड गोल्डन कास्केट इज सेम, बहुत कमेंट से अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को बहुत ब्यूटीफाई करते हैं विद ऑर्नामेंट्स, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से खोखले होते हैं। So this was the first example which he imagined for gold casket। Now second example, he imagines that religious people, those who dress up in a Brahmin and do lot of misdeed in their life, और जब उनसे उससे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते थे it has been quoted in the Bible। वो भगवान के नाम पर ऐसा हुआ था, भगवान ने मुझसे ऐसा कहा था, भगवान ने मुझसे ऐसा कहा था। They used to quote themselves and they rescue themselves by the name of। तो सेकंड एग्जांपल वो ये देता है। थर्ड एग्जांपल वो ये सोचता है कि इट इज दिस लाइक अ पीपल इन द कोर्ट्स, वो जो बहुत अपने आप को बहुत ब्यूटीफाई लैंग्वेज में बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर करप्शन भरा होता है। तो वो एक एग्जांपल हो गया। then he gave an example of god of Mars and Heracles। लाइक कई लोग कहना था कि जैसे लोग अपनी गाड़ी बढ़ाकर अपने आप को बहुत brave people are like reckless और वो बढ़ा लेते हैं very very लोग है। तो ना अभी इतना समझने पर आपको ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि सिलानो एंड सिलारिनो वर बिफोर एंटरिंग शाइलॉक डिस्कसिंग अबाउट व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है व्हेन द मोमेंट शाइलॉक केम ही डिस्कस अबाउट व्हिच इंसिडेंट। तो
जैसे ही शार्लॉक एंटर करता है तो वो सबसे पहले अपनी डॉटर के बारे में ही बताता है सबको कि अबाउट द एलॉपमेंट ऑफ जेसिका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि व्हाट डज व्हाइट लेबर स्टैंड्स फॉर, so maybe there must be options. It stands for brave people, it stands for powered people, it stands for white color, it stands for red color, whatever the options may come, तो आप उसमें क्या चूज करेंगे? that it stands for powered people। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर फिर उसने आप पेज लाइन नंबर 90 देखो, यहाँ पे लाइन नंबर 90 पे आता है अनदर एग्जांपल गिवन बाय बेसानियो कि जो एक तो हो गया गोल्डन कास्केट, तो गोल्डन ऑर्नामेंट से कंपेयर हो गया। फिर जो उसकी जो शाइनिंग है, जो ब्यूटिफिकेशन है, वो रिलीजियस पीपल और कोर्ट के जो लॉज, जो लॉयर्स होते हैं, जो वहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे हो गया। फिर एक वो हो गया ब्यूटीफाई करते हैं जो लोग अपने आप को विद वाइट दैट दे प्रिटेंड टू बी वेरी ब्रेव बाय देयर फेसेस एंड बाय देयर लुक, बट एक्चुअली दे आर नॉट। देन एग्जांपल ही गेव अबाउट द पीपल who purchase beauty from this shop, you can see purchase by the weight, 91 line number, purchase by the weight, so that by the weight means that they go and purchase for the beautification cosmetics, and with the cosmetics they use to design beautify themselves, but actually they are not beautiful। तो वो एक एग्जाम्पल उसने दिया। फिर उसने एक एग्जाम्पल ये दिया कि जैसे लोग गोल्डन हेयर लगाते हैं, तो जिनका एक्चुअल में गोल्डन हेयर होता है उनकी बॉडी कहीं टोम में या कहीं दफन की गई होती है और उनके बाल मार्केट में बिकते हैं और वो बाल लोग लगाकर अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल वो देता है। फिर एग्जाम्पल एक और देता है वो कि कहता है कि पेज नंबर 100 पे देता है लाइन कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को बहुत डार्क स्किन्ड होते हैं एंड देन वो अपने आप को ब्यूटीफाई कर लेते हैं विद डिफरेंट ब्यूटीफुल क्लोथ्स टू हाइड देयर डार्क स्किन, यानी अपनी अपनी डलनेस को, अपनी डार्कनेस को वो कैसे छुपाते हैं, वो एक एग्जाम्पल देता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स वो सिर्फ इसीलिए देता है क्योंकि वो गोल्डन कास्केट को देखकर, गोल्डन कास्केट का कलर, उसका अट्रैक्शन, उसका ग्लिटरिंग, ये सारी चीजों को देखकर ये सारी चीजों का एग्जाम्पल वो देता है। ठीक है, तो ये हो गया। देन ही आल्सो गिव अ एग्जांपल ऑफ किंग मिडास। जैसे किंग मिडास आपने बचपन में सुनी होगी स्टोरी दैट ही वांटेड टू हैव एवरीथिंग एज अ गोल्ड, लेकिन फिर क्या होता है वहाँ पे, जन एवरीथिंग ही वांटेड एज अ गोल्ड, सो ही वाज बीइंग ब्लेस्ड बाय द गॉड कि तुम जो भी छुओगे वो गोल्ड कलर में चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली व्हेन जब मिडास खाने बैठता है तो भी वो चीजें चेंजेस इनटू गोल्ड कलर। तो वहाँ पर ये भी एग्जांपल देता है कि सोना कभी किसी की भूख नहीं मिटा सकता। And the most example he thinks about Shylock, the character of Shylock, that कि Shylock कैसा अब है, वो एक्चुअल में उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो एकदम हार्टलेस पर्सन है ना, he doesn't have any love for daughter and doesn't have any mercy for a person। तो वो ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स में अगर आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए, नीड टू आंसर इन दिस वे। then he considered the silver casket as money, silver casket as money, that like money transfer from one place to another, from one hand to another person। तो सिल्वर भी वही है, ये एक ऑर्डिनरी है जो कि और थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, जैसे मुझे पैसा हमेशा अट्रैक्ट करता है लेकिन एक्चुअली पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में। तो ही डिस्कस अबाउट दिस एंड एट लास्ट he goes with the paleness moves me more than eloquence and here chooses I joy with the consequence। तब फिर वो लास्ट में यू कैन सी 100 5 6 7 8 लास्ट 108 एंड 109 लाइन, इस लाइन पे ही chooses the lead casket। क्यों? because the lead casket, whatever the lead casket is looking as, it's same as it is looking। जो ऐसा कुछ दिख रहा है पेल इन कलर, हार्ड बाय कलर, नेचुरल बाय कलर, तो वो वैसे ही है। सो ही chooses the lead casket and the moment he chooses the golden casket, Portia, there how all other passions flee through air, and doubtful thought and rash embrace despair, and shuddering fear the grey-eyed jealousy, oh love be moderate, LD ecstasy, in measures the rain of joy, scan this excess, I feel too much by bliss। Now these all examples, these all lines being said by the Portia, the moment he chooses the lead casket, she feels very happy। The moment Lorenzo go and Bassanio chooses the lead casket। Now so she becomes very happy and then they come to the Bassanio। Bassanio जब वो casket open करता है तो फिर वहाँ this line is also important, जब वो open करता है तो he find a picture, a portrait of Portia, और फिर उस portrait of Portia को वो तारीफ करता है। पहले उसकी आंखों को तारीफ करता है, कहता है कि उसकी आंखें ऐसा लग रहा है it's like just demigod, means किसी
भगवान के भेजे हुए किसी बहुत बड़े दूत ने इसकी ये फोटो बनाई होगी, जिसकी आईज ऐसी लग रही कि व्हेन आई एम लुकिंग इनटू द आईज, तो ऐसा लगता है पिक्चर इज आल्सो लुकिंग इनटू माय आईज, आईज आर वेरी लाइवली। तो वो आंखों की तारीफ करता है, एंड देन ही टॉक्स अबाउट द लिप्स, that these the lips are so beautifully designed and beautifully beautified, ऐसा लग रहा है two friends are standing together, और उनके बीच की जो जो दोनों लिप्स के बीच का जो गैप, it seems that that gap is breathing, it means the portrait of Portia is breathing there। और उससे शुगरी, मतलब शुगरी यानी कि जो दोनों उसके जो लिप्स हैं, this is looking as beautiful, and the picture of Portia is breathing। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है। देन ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द हेयर, कि ऐसा लग रहा है जैसे द स्पाइडर हैज मेड अ cobweb in under and it's looking so natural that any man who looked into the hair, its heart gets attracted towards, वो तो किसी के दिल को फंसा ले ऐसे उसके बाल है। So he compares all these people, and then he at last he says कि maybe मैं कुछ कम बोल दिया हूँ, शायद इससे भी और भी मुझे इसको ब्यूटीफाई, इतनी खूबसूरत ये फोटो है, और तो एक्चुअली में पोर्शिया में आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम। और वो ये बात बोलता है, एंड देन ही रीड्स आउट अ letter written in this, and the letter is that you that choose not by the view, then there was a letter कि तुमने जो भी चूज किया वो शायद देख कर चूज किया, बाहरी ब्यूटी को देखकर नहीं चूज किया, बल्कि तुमने रियल ब्यूटी देखकर चूज किया करके ये सब डिस्कशन करता है वहां पर। एंड ही गिव्स दी एंड स्क्रॉल में लिखा होता है कि दैट नाइट व्हेन यू गेट दिस फोटो यू नीड टू हैव अ किस, एंड एन एक्सचेंज ऑफ किस शुड बी देयर, सो दैट this shows that now Bassanio is can go Portia and Portia can get married to Bassanio। तो ये लाइन यहाँ पर आता है, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स कम टू पेज नंबर 94, वहाँ पे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि he has chosen the right casket and there was applause all over the mansion, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जो बिसानियो वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, जैसे होता है ना कि somebody does a victory by and then everybody start applauding, so there is a confusion कि सब ताली बजा रहे हैं, और जो मेज जिसके लिए मैंने परफॉर्मेंस दी है उनको कैसा लगा। हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है जब हम कोई चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो सिमिलर कंडीशन हैपेंस विद बिसानियो जब सब लोग अप्लॉज करते हैं, खुश होते हैं, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है, अनलेस एंड अनटिल पर्शिया डजंट गिव टू हर ऑथेंटिकेशन की जो किया है वो सही है। तो देन फिर उसके बाद पर्शिया उसको बोलती है कि जो तुमको मिला है नाउ मैं बहुत खुश हूँ, आज से पहले मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। इफ यू कैन सी 150 लाइन के नीचे पर्शिया का डायलॉग है, यहाँ पे पर्शिया अपने आप को बहुत हैप्पी फील करती है, एंड शी आज दैट कि मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बट नाउ आज मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी सुंदर हो जाऊँ, इतनी अमीर हो जाऊँ, और I should be like that and like that and like that. So she asked a lot of wishes. Why she was asking a lot of wishes for herself? Because she is extremely happy that Bassanio has chosen the right casket. तो वो इस पूरे में अपने आप को बताती है, I want to be schooled again, I want to be an innocent girl, I want to be unpracticed again, and she wanted to be a new Portia for her lord Bassanio। वो कहती है कि मैं जो भी हूँ आज से मैं उससे और ज्यादा सुंदर होना चाहती हूँ और ज्यादा अच्छी होना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल एक अनप्रैक्टिस गर्ल की तरफ फिर से एक नए लेसन, एक नए लाइफ में एंटर करती हूँ। लाइफ ऑन एन एग्जाम्पल द बैंगल सेलर, if a bangle seller में the life of the girl changes when she is a young maiden, the life is different, when she get married the life is different। so now the Portia is entering to the second phase of life of marriage। तो वो कहती है कि I want to become like you, तुम मुझे जैसा बनाना चाहती हो, मैं जो भी हूँ सब भूल जाऊंगी, मैं तुम मुझे जैसा बनाना चाहती हो, मैं तुम्हारे आंखों पे बहुत ज्यादा ऊपर उठ के रहना चाहती हूँ। and then she gives she show her all happiness for Bassanio that she is going to get married for the love she wanted। तो यहाँ पर सारा इसमें उससे फिर वो अपने सर्वेंट्स, अपने मैंशन, सबकी वो अपने आप उसको लॉर्ड बनाती है कि तुम सिर्फ मेरे लॉर्ड नहीं हो, नाउ यू आर लॉर्ड ऑफ दिस मैंशन, यू आर द लॉर्ड ऑफ माय सर्वेंट्स and you are the owner of everything, whatever belongs to me now it belongs to you are, now nothing is mine, everything is yours। so she was so happy that she declared Bassanio as lord of mansion and servants and everything। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है, एंड देन बिसानियो का डायलॉग होता है। बिसानियो जब ये सब सुनता है तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है, तो समझ नहीं पाता है कि that he become very speechless because after choosing red casket the people applauded him for his victory, and then Portia used to give a lot of things and she praises her in
this way to Bassanio, so he was totally confused. तो वो समझ नहीं पाता है कि after all हुआ क्या, मतलब वो can you see page number 180 line, and there is such confusion in my powers as the same oration fairly spoke. We beloved prince, the not fear among the buzzing fleas multitude, where every something being blends together. और सब कुछ उसे मतलब वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा स्पीच देता है और लोग उसकी तालियां बजाते हैं, बट वहाँ पे वो कुछ नहीं वो कर पाता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. And then he was extremely happy, फिर उसको फील होता है. And then Portia gives a ring. Portia, now look at the page, line number 185, turns to wild of nothing save of joy express, then not express, but when this ring parts his finger, then part life. और फिर वो जो Portia उसको ring देती है, और that ring plays a major role in the entire drama. ये ring का बहुत बड़ा लोचा है पूरे ड्रामा में. तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. वो रिंग उसको देती है और कहती है कि ये रिंग तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी लाइफ कभी अलग नहीं होना चाहिए, यानी जब तक मेरी जिंदगी तब तक ये रिंग कभी मुझसे अलग नहीं होंगे. अगर जिस दिन ये रिंग मुझसे अलग हो, समझ लीजिए Bassanio is dead. So this is all end. Now reveal of Nerissa and Bresciano, love is there. फिर जब Bresciano बताता है, they both Nerissa and Bresciano congratulate, and then they reveal their love for each other and they also wanted to get married. फिर Bresciano कहता है, अगर आपकी कास्टिंग की चॉइस पे मेरी लाइफ डिपेंडेंट है, अगर आप गलत कास्टिंग चूज करते तो आपको तो पर्शा नहीं मिलती, मुझे भी मेरा प्यार नहीं मिलता. एंड देन दे रिवील देयर लव फॉर ईच अदर, एंड देन दे डिसाइडेड टू हैव पीस. और फिर डिसाइड होता है कि दोनों मतलब दोनों कपल्स की शादी एक ही दिन होगी. दिस इज ऑल अबाउट हियर डिस्कशन इन पेज नंबर 96. मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही ये सीन खत्म होता है, एंटर्स देयर लोरेंजो विद सेलेरियो एंड जेसिका. Now Lorenzo and Jessica and Celario Bassanio से मिलने Portia के mention आता है, और he met Lorenzo and Jessica and forcefully he brought both of them to their mansion of Portia. वहाँ पर वो बताता है, and then he talks about Antonio. Now look at page number 97, 230 line. To come with along Celerino, I did my lord, and I have reason for it. Signor Antonio commends him to you. Now signor का मतलब होता है Mr. Antonio. This is a word in respect said to a person, like Mr. हम लोग कहते हैं Mr. ये है ना, Mr. Antonio. Now before, and he hand overs the letter, the Bassanio before opens the letter, he asks about Antonio's life, कि क्या चल रहा है. तो वो बताता है कि मेरे पास मतलब वो बहुत बीमार, नॉट मतलब वो कहते हैं कि वो ऐसे तो बीमार नहीं, लेकिन दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा बीमार है. एंड ही एक्सप्रेसेस जितनी भी शिप थी वो सारी की सारी लॉस में चली गई हैं. ऑल आर wrecked and this is the letter which he has sent for you to me. तो वो उसको लेटर देता है. देन ग्रेशियानो जो है नरीसा से मिलवाता है, मतलब ग्रेशियानो वहाँ पे नरीसा से मिलवाता है, जेसिका को बताता है कि जेसिका एंड लॉरेंजो आर इन, और ये उनकी स्टोरी बताता है. यहाँ पे ये होता है. फिर उसके बाद कम टू पेज नंबर 98, 245 लाइन पे Portia जब Bassanio उस लेटर को देखता है, he feels very upset. तो Portia परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या उस लेटर में लिखा है, ऐसा किसकी डेथ के बारे में लिखा है कि आपकी मेरे लॉर्ड के पूरे फेस का कलर ही चेंज हो गया. What is wrong with? So Bassanio tells about that this letter is full of blotted paper. ये पूरा blotted paper है, इसके एक एक शब्द इस तरह से लिखे. This is all like stain with blood. मतलब what the word which he has written by Antonio for Bassanio. तो ऐसा लगा कि एक एक वर्ड में इज ब्लॉटेड विद ब्लड, एक एक वर्ड में उसकी दर्द दे चुका है, उसके एक एक वर्ड में. तो ये सारी डिस्क्रिप्शन वो Bassanio को Portia को बताता है Bassanio about the letter, and tells about when he reveals about कि आज मैं जो कुछ भी हूँ because of Antonio की वजह से आज मैं थोड़ा नहीं, मैं एक बस एक जेंटलमैन हूँ by veins. वो यहाँ पर this you can see the line in 255 line with that ever blotted paper gentle lady. Here he says that when I did first impart my love to you, I freely told you that all wealth I had ran in my veins, so I was a gem. बस मैं एक gentleman हूँ और बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, और जो भी मैं दिख रहा हूँ या दिखता हूँ तुमको, ये this is all because of Antonio. And then he tells about everything to Antonio. Antonio के बारे में बताता है कि वह अपने फ्रेंड की वजह से यहाँ पर आ पाया हूँ, उसी ने मुझे फाइनेंस किया था. फिर he tells about everything कि उसने 30,000 रुपए मेरे लिए लिया था शाइलॉक से, and he explains everything about Antonio's good deeds done by Antonio for Bassanio. तो ये सारी चीजें हो गई. Then Celerino उसको लेटर देता है, लेटर में पढ़ता है, उस लेटर में लिखा होता है
he that Antonio wanted Bassanio to come and meet for the last time. Agar if his love allows him to come, so definitely he would come. Otherwise, कोई ऐसा compel नहीं है that you have to come. फिर ये डिस्कशन वहाँ पे होता है, तो जेसिका बोलती है कि मेरे फादर अगर वो अब देना चाहेगा तो भी मेरे फादर वो नहीं लेंगे, बिकॉज ही वांटेड टू रिवेंज एंटोनियो, ही हेट एंटोनियो. वो सारी चीजें जेसिका बताती है उसको, ठीक है. So this is all Jessica tell, and then Portia tries to help Bassanio by giving Kennedy बस 3,000 to give him 6,000, give him multiple of money and just closes down. तो वहाँ पे Jessica कहती है कि नहीं, वो पैसा नहीं लेगा, उसको उसकी ब्लड से ही मतलब है, because he hates Antonio. This is all. And then जब पोर्शिया को ये बातें पता चलती है तो पोर्शिया तुरंत ही बसानियो को कहती है कि नो बसानियो, यू लीव एज सून एज पॉसिबल. तुम जाओ. पहले पोर्शिया अपनी तरफ से सारी कोशिश करती है, बट वो कोई काम नहीं आती, बिकॉज जेसिका बोलती है कि नहीं, he couldn't do anything, but नहीं वो कोई पैसा नहीं लगा. He wanted to have revenge with Antonio. And this is all. And immediately Bassanio leaves at that place with the permission of Jessica, with permission of Portia, and leaves that place. फिर उसके बाद again any query you want to ask, कुछ और पूछना है आप लोगों को इसके बारे में. This is the most important part of the entire scene. यहाँ पे ring scene होता है on this. Manaswin. Yes, unmute Manaswin. Ma'am, I just want to ask this, ma'am, who is the god of Jews, ma'am? Jewish? Janus. Elizabethan. Yes, ma'am, Janus. Elizabethan time में god of Janus basically कहते हैं god of January. जनवरी जो होते हैं वो जानस जो गॉड होते हैं, वो कहते हैं वो डबल साइडेड होते हैं. जैसे आपने देखा होगा ये पत्ते में जो जोकर बना रहता है, ताश के पत्ते में देखते हो ना, एक तरफ ऑपोजिट किंग होता है, इधर भी नीचे भी किंग होता है ना. वो गॉड ऑफ जानस से डबल हेडेड गॉड माना जाता है. उसको डबल हेडेड गॉड माना जाता है ड्यूरिंग द एलिजाबेथियन टाइम. इट्स अ डबल हेडेड गॉड. जानस बेसिकली स्टैंड्स फॉर जनवरी. ठीक है मैम, एक और चीज पूछ रहा था मैम. मैम, जब पोर्शिया मैम जो रिंग सीन हुआ था कोर्ट में, तो मैम जब पोर्शिया ने बसानियो से रिंग मांगी तो मैम नहीं बसानियो से रिंग मांगी नहीं. बसानियो को लिसन टू मी मनस्विन, बसानियो से रिंग मांगी नहीं, कि बसानियो को रिंग दिया था और इस वादे से दिया था कि आज से तुम मेरे लॉर्ड हो. यू आर द लॉर्ड ऑफ दिस मेंशन, यू आर द लॉर्ड ऑफ दिस इंटायर ट्रेजर, और या सर्वेंट्स मेंशन, मुझसे सब कुछ उसके नाम कर दिया था विद दैट रिंग, और कहा था कि रिंग जब तक तुम हो तब तक ये रिंग तुमसे अलग नहीं होनी चाहिए. नहीं तो दिस इज द ब्रेकेज ऑफ अवर लव. अगर तुम ये रिंग अपने से लाइफ से और अपनी उंगली से अलग करते हो, इसका मतलब तुमने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया है. तो Bassanio gives a promise कि ये रिंग जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक this ring will always remain in my finger, और जिस दिन ये मेरी उंगली से निकल कर बाहर जाती है तो इसको समझ लीजिए Bassanio is dead. This is the kind of promise the both of them made with each other when he wins the blood cast. समझ गया? Or you need to ask anything else? Okay. यहाँ पर सीन 2 इज एंड ओवर. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स गिवन बाय जैसे बाय द पोर्शिया व्हेन ही वाज गोइंग टू चूज अ कास्केट. तो उसमें ऑप्शंस होंगे, या उसमें ऑप्शंस हो सकता है कि व्हिच कास्केट stands for ornamental kind of cascade, तो उसमें golden cascade का ऑप्शन आएगा. तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह से ऑप्शंस आएंगे, एंड यू हैव टू क्लिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ कम्स हियर, ये तो हो गया तुम्हारा बेलमोंट का सीन. अगेन कम्स टू वेनिस. वेनिस में यहाँ पे शाइलॉक जेलर को लेकर आता है so that he could be prisoned, so that because Antonio was unable to pay the debts which taken by him for Bassanio, वो दे नहीं पाता है. वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट Shylock was not ready to listen anything from Antonio. In fact, वो फिर उसके बाद एंटोनियो समझ जाता है, सिलानियो बोलता है उसको दैट कि हाउ इनह्यूमन यू आर, हाउ हार्ड हार्टेड यू आर, क्योंकि तुम्हें उस बंदे उस बेचारे को तो वैसे ही वो बैंकरप्ट है, एंड देन यू आर आस्किंग फॉर दिस flesh of his body, वो कैसे देगा. but he doesn't want to listen of anything and he imprisoned एंटोनियो. और फिर एंटोनियो कहता है कि स्लैरेनो वैसे भी I have lost so much of weight that I don't have, मेरी बॉडी में पाउंड ऑफ
फ्लैश होगा ही नहीं कि वो मैं उसे दे पाऊँ ना। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, आई वांट टू फिनिश इट अप विद आवर लाइफ, क्योंकि मेरी तो सारी शिप्स वैसे भी ऑलरेडी ऑल वेसल्स आर इन लॉस, तो मेरे पास कुछ है नहीं कि अगर मैं बच भी जाऊंगी तो भी मैं उसे कभी कुछ वापस नहीं कर पाऊंगा. सो इट्स बेटर नो आर्ग्यूमेंट विद शार्लॉक एंड लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू. तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ड्यूक से हम लोग बात करेंगे, जज से बात करें, लॉयर से बात करें. तो कहता है कि नहीं, अगर मर्चेंट जो वेनिस है वो मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन, मतलब वो बहुत बड़ा मर्चेंडाइज है फॉर दी बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उनका सारे ऑथेंटिकेशन जो भी दूर दूर से वो ट्रेड करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकॉज ऑफ दैट ऑथेंटिकेशन ऑन पेपर. और उसने अपनी बॉन्ड उस पेपर पे लिखवाई. अगर ड्यूक इस बॉन्ड को मानने से मना करता है तो इट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर वेनिस. फिर कोई भी वेनिस के लोगों से ट्रांजैक्शन नहीं करेगा क्योंकि उनके पेपर की भी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है. तो नोबडी कैन हेल्प मी आउट. मुझे मेरे अब दिन करीब आ गया ना, आई हैव टू डाई. दिस इज ऑल अबाउट सीन 3 इन एक्ट 3. सीन 4 में अगेन कम्स द सीन ऑफ बेलमोंट. दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. Parth, before let me discuss. Parth Kesri has to ask something. Yes, Parth. Parth, unmute yourself. Yes, Parth. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I want to ask ma'am, the examples of why Bassanio didn't choose the gold casket. How, ma'am, how it will come in the test, like Test may maybe it can be asked that while choosing the golden casket Bassanio thought of. तो उसमें पहला ऑप्शन आएगा, मे बी Bassanio thought of the ornamental life, thought of choosing the silver casket, thought of Portia, thought of Antonio, which is the correct option. The correct option is a thought of the ornamental life. ठीक है, तो दिस इज ऐसा करके आएगा. या when did Bassanio gave an example of King Midas? तो when he gave an example of King Midas when he was about to choose the golden casket. जो गोल्डन कास्केट को जो वो चूज करने के लिए गया था, गोल्डन कास्केट के पास गया था, तब उसने किंग मिडास के बारे में सोचा था. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. और व्हाट डिड ही फाइंड इनसाइड द लेड कास्केट? तो उसमें कई सारे ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है और बोला, तो उसमें से क्या पाया? देयर वाज अ स्क्रॉल एंड पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल बट यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग. क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट नहीं because descriptive is difficult. इसीलिए I'm not going line by line, इसलिए I'm giving you the summary. क्योंकि इसी summary को अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी options आएगा, आप option समझ देखते ही पढ़ते ही you will get to know. ठीक है, चलो mute yourself. Now this coming up to scene 4 again. Yes, continue. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो पार्थ. मैम टेस्ट में ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के मैम कौन से एक्ट्स और सीन्स आएंगे? एक्ट 3 के सारे सीन्स हैं. ऑल सीन्स आर कवर्ड. ऑल सीन्स आर कवर्ड फॉर एक्ट 3. हर सी 10 क्वेश्चंस आएंगे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स. 10 marks for Merchant of Venice, 5 marks for rest of the chapters. 30 marks का पेपर है, 30 minutes for each question. 1 minute, 1 mark dedicated for each and every question. ठीक है? And then Merchant of Venice 10 marks के आएंगे. That 10 questions will come from Merchant of Venice and every part, every scene मतलब has been included in the paper. हर scene उसमें included है. ठीक है? And then the other 4, 2 poetry, 2 prose, that is of 10 marks. 5 marks each. ठीक है? Okay, now coming to this. Now again the scene of Belmont has come. वहाँ पे लॉरेंजो जो रहता है वो लॉरेंजो सिलारिनो के साथ वहाँ पर आता है और लॉरेंजो बताता है, पोर्शिया को रियलाइज कराता है कि आपने कितनी बड़ी, आप नहीं जानते बेसानियो और एंटोनियो की फ्रेंडशिप के बारे में और आपने क्या किया आप नहीं जानते. मतलब उसको बहुत फील कराता है कि एंटोनियो एंड बेसानियो आर टोटली टू वन सोल, टू डिफरेंट बॉडीज, वन सोल वाला दोनों की लाइफ है. तो पोर्शिया कहती है कि मैं कोई भी करती हूँ तो आई डोंट रिग्रेट ऑफ माई सेल्फ. मैं जो भी करती हूँ आई हैव डन इट फॉर मैं जो भी करूंगी या सोचती हूँ बिकॉज ऑफ बेसानियो, क्योंकि मेरा ब्लड मतलब माई हस्बैंड इज वेरी क्लोज टू एंटोनियो. वो एंटोनियो से इतना प्यार करता है तो मुझे भी, और चूंकि मैं बेसानियो से बहुत प्यार करती हूँ तो आई हैव टू हेल्प एंटोनियो. तो वो ये सारी चीजें उसको कहती है. एंड देन ही टेल्स लॉरेंजो कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग to different monasteries to offer prayer for their victory.
और उसके पीछे जब मैं when I will leave this place, you are the lord of the mansion, you and Jessica are going to look after the entire management of the mansion. और जब तक कि मैं और इसके बारे में मैं अपने ऑनेस्टी में दर्शन करने जा रही हूँ, सिर्फ अपने साथ अपनी मेड निरीसा को लेके जाऊंगी, and rest everything will you have to hear and look after all the management of the mansion. And then Lorenzo gives a agree to look after the mansion, and he says that whenever you if you are going, I'll be looking after your mansion, you are need not to worry. And then she calls one of her very honest loyal servant, Balatzar को बुलाती है, and he gives a letter and sends him to Padua. Please mind it out, he sends him to Padua to Dr. Bellario. वहाँ पे वो कहती है कि you take this letter and all जो भी without late, without talking, without wasting, take a ferry. Ferry is your मतलब अपना खुद का, जैसे पहले के with auto rickshaws and all तो रहते नहीं थे, people used to travel by sea route. तो सी रूट में भी अगर आप बहुत रिच हैं तो यू हैव योर ओन बोट एंड योर हैव योर ओन शिप विथ योर पर्सनल पायलट इन दैट. तो वो कहती है कि यू गो बाय दैट एंड विदाउट फेलिंग, विदाउट टेकिंग टाइम, रश, गो देयर, गिव दिस लेटर, fetch the things which he gives you and come back soon as possible. तो वो ये काम किसको देती है? बालतजार को देती है, one of the loyal servant of Portia. और वो बालतजार को देती है to give it to go to Padua and meet one of her cousin, Dr. Bellario. डॉक्टर बेलारियो इज अ लॉयर. पहले वहाँ पे लॉयर्स को भी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था, तो वो डॉक्टर बेलारियो. और बेलारियो कहती है कि वो जो क्लोज अनडॉक्यूमेंट नोट्स, यू कैन सी पेज नंबर 105 लाइन 105 line. In a speech to Padua, see thou render this into my cousin's hand, Dr. Bellario, and look what notes and garments he doth give thee. Bring them, I pray thee, with imagined speed unto the transit to the common ferry. मतलब जहाँ जहाँ रहे हो डॉक्टर बेलारियो को ये दो के, और वो लेटर और वो नोट्स एंड गारमेंट्स, यानी जो कपड़े और वो जो लेटर वो तुम्हें देगा. इस लेटर पढ़ने के बाद वो तुम उसको तुरंत लेकर मेरे पास आओगे. एंड फिर तुरंत वो बेलाजार को भेजती है, एंड बेलाजार लीव्स Padua, एंड देन शी कॉल्स नरीसा, और नरीसा से कहती है कि अब हम तुम्हारा मेरा काम यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, हम उसको तुम्हें बताते हैं. एंड प्लानिंग्स क्या थी? वो प्लानिंग ये थी कि वो दोनों इन अ डिस्गाइज ऑफ मैन वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे. तो नरीसा कहती है कि हम लोग को कोई पहचानेगा? तो वो कहती कि नहीं, हमें कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन हम सबको पहचानेंगे, लेकिन हमें कोई नहीं पहचानेगा, हमें सब लोग लड़कियों की नजर से देखेंगे, और हम अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप करेंगे दैट वी लुक मोर हैंडसम देन द रियल मैन. नेचुरल मैन से भी ज्यादा हैंडसम एंड गुड लुकिंग हम लोग दिखेंगे. एंड देन बोथ ऑफ देम प्लान्ड एंड दे लीव देयर फॉर दैट प्लेस. फिर वो वहाँ पे कहती कि मैं तुमको सारी प्लानिंग्स बता दूंगी while on the way, और फिर वो वहाँ से चली जाते हैं. वो Portia and Nerissa went to the place where Bassanio and Antonio were there. They went to Venice. ठीक है. अब फिर again the part comes act 3 scene 5. यहाँ पे लॉन्सलेट जेसिका की सीन चल रही है. लॉन्सलेट बताता है जेसिका को इट्स a little humor has been added in this scene. वहाँ पे लॉन्सलेट कहता है जेसिका was a Jewish daughter, तो वो Jewish है, तो वो उसको मजाक उड़ाता है उसके बारे में कि तुम्हारे पापा ने जो भी किया है सिन वो तुम्हें मिलेगा. तो कहती है कि नहीं, once I have married to a Christian, मुझे पता है I will be saved by the God because I am now no more a Jewish, I am a Christian. तब वो कहता है अच्छा तुम क्रिश्चियन हो गई हो, तो वहाँ पे बीपॉर क्या रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, अगर ऐसे ही लोग जूइश से क्रिश्चियन बनते रहेंगे तो उसका रेट हाई हो जाएगा खाने पीने का. एंड दे वर हैविंग अ discussion among themselves, and where enters Lorenzo, and Lorenzo says he gives a why what you both are talking. So Jessica explains that we are not talking, we are actually quarreling for all these things. फिर उसके बाद वहाँ पे ये सीन होता है. then Lorenzo उसको खाने की टेबल पे बुला, तो वो उसका मजाक उड़ाता है कि खाने का टेबल लग हुआ है सर, ये वो. So these all fun mode is going on between Lancelot and Lorenzo. And then Lorenzo says to lay the table beautifully for the dinner, and they had a dinner. और वहाँ पे about life of Portia and Bassanio. आते होंगे इस तरह की वो लड़की है, मतलब इस तरह की वो पर्सन है, शी इज वेरी गुड बाय नेचर एंड ऑल.
तो लॉरेंजो कहता है कि जो क्वालिटी तुमको पोर्शिया में दिखती है वही क्वालिटी मेरे अंदर. So Lorenzo compares Portia as herself, as himself. कहते जो क्वालिटी तुमको पोर्शिया में दिखती है वही क्वालिटी तुम्हारे हस्बैंड में भी है, लॉरेंजो में भी है. तो वो कहते कि लेट मुझे तुम अपनी तारीफ करो. तुम क्यों अपनी तारीफ कर रहे हो? तो कहता है कि मुझे तुम्हारी तुम वो जैसे कैसे कि मैं पहले बताऊंगी तुमको कि तुम मेरे को किस तरह के लगते हो. तो लॉरेंजो से कि नहीं तुम अभी मत बताओ मुझे, लेट मी हैव माय टिफिन, क्योंकि लेट मी हैव माय लंच डिनर and then I will listen to all what you have said because I want my food to be get digested. But it's a kind of humor कि जब पति पत्नी बैठते हैं खाना खाने तो कोई ना कोई नोकझोंक होती तो husband was not able to eat food. तो ये कहता है कि तुम अपनी बात मुझे बातें बताना, पहले मैं खा लूं and this is the end of act 3. So do you need an, तो ये सारी चीजें हैं. I'm just giving a summary. अगर आप यहाँ से read line by line, if you feel any difficulty ask me. And please, there is a request from everyone, when you are putting me a personal messages, please do write your name. Most of you do not have your, please, तो मैं recognize ही नहीं कर पाती the person who will, so I please introduce yourself with your name, that you are of which class and of which section, and then put your question. Keep on asking who are you, and if people keep on chatting with me, chatting on me, I don't able to understand the on. So please do either you put a DP of yours so that I can recognize you, or mention your name before you match girl, और वो डिस्कस कर लेंगे. अगर if you want me to discuss something else तो जल्द बताओ, because the meeting is already 4. So raise your hand if you want me to leave the meeting. Of passive and direct indirect speech. And then two prepositions and one more chapter tenses. ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. So grammar में I don't feel like कि कुछ ऐसा देने लायक है कि I should continue with us all summary in a day. I'll continue with that prose and finish it off. Or you want me to go with poetry and prose revision. Choice up to your